Hello students, we were making discussion about the fifth chapter, heat. As we have studied here, when we make two objects which having different temperatures in contact with each other, then there will be transfer of heat from higher temperature to lower temperature. Means अगर हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को उनको आपस में ज्वाइन करते हैं, उनको फिजिकली कांटेक्ट करते हैं, देन जो एक बॉडी अगर हायर टेम्परेचर पर है, उस बॉडी से जो टेम्परेचर है, हीट है, वो फ्लो करती है द बॉडी हैविंग लो टेम्परेचर. इट इज क्लियर. कब तक ऐसा होता रहेगा? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता, सेम नहीं हो जाता. ओके, नाउ टुडे वी हैव टू मेक सम knowledge of some more facts about heat and temperature. As you will make focus towards the page number 60 of your book, they have written here, we often observe that when we heat a body, its temperature rises. Generally, जब भी हम किसी बॉडी को हीट अप करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है that increases. This indicates that heat and temperature are related to each other. Of course, here heat and temperature are related to each other. You can say directly proportional. As we heat the body, the temperature will rise up. Clear? Heat is the energy of a body that is due to the motion of its constituent particles or molecules. Keep in mind, very important thing. Actually, मान लो अगर ये कोई बॉडी है, these are the particles or molecules of the object or body. तो जो हीट है, that is energy, ये कह रहा है when these particles or molecules make its motion. As they have written here, heat is the energy of body that is due to the motion of its constituent particles. Means movement of particles or molecules within the body possess here heat energy. Movement or motion of particles or molecules within the object or body possesses what? Heat energy. Temperature, on the other hand, is just an indicator of this energy. Even a cold object possesses heat energy due to the motion of its particles or molecules. When we add or remove heat from a body, motion of its molecules become faster or slower. देखिए, जब भी हम किसी बॉडी से हीट निकालते हैं, रिमूव करते हैं, या बॉडी को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है? whatever or the particles of or molecules of that body having some particular motion may be increase or decrease. ठीक है? जब भी हम किसी बॉडी को हीट अप करते हैं या उसको ठंडा करते हैं, तो
जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स जिन पार्टिकल से वो बॉडी बनी है या वो मॉलिक्यूल्स जिनसे वो बॉडी बनी है, उनका जो मोशन है आइदर ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा। देखिए, अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट अप करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मोशन बढ़ना चाहिए। यस, डेफिनेटली देयर the motion of constituent particles will increase whenever we remove the heat from the object or body. Then ultimately motion of what? The particles, constituent molecules may be decreased, कम हो जाएगा। Is it clear? Okay. Now here we have to make discussion about effects of heat. Whenever we heated an object or a body, तो उसकी बॉडी में किस किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं, अबाउट दैट वी हैव टू स्टडी हियर। When a body is heated, various types of physical and chemical changes are observed to take place. Mainly, we have to observe here two types of changes. One is here physical change or changes, and second is here chemical changes. Physical and chemical changes are observed to take place. We listed some of them effects of heat. First of all, they are making discussion about some physical changes. In physical changes, you will read here, you will observe and you will know here. First one is here change in temperature, A. Change in temperature. We all know that addition or removal of heat to or from a body brings about a change in its temperature. Addition of heat to a body usually raises its temperature, whereas removal of heat from a body lowers its temperature. Very common. ये कह रहा है, देखो, अगर हम किसी भी बॉडी को हीट देते हैं, हीट अप करते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर है वो रेज करता है। अगर हम उसमें से हीट को रिमूव करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? लो हो जाएगा। सेकेंड इज हियर चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। Under appropriate conditions, addition or removal of heat to or from a body can also bring about a change in its state. For example, on putting a tray of water, liquid form, in a freezer compartment or refrigerator, the water freezes to form ice. Ice, as we know, is the solid form of water. Similarly, when water is heated over a flame, it starts boiling and gets converted into steam. Steam, as we know, is the gaseous or vapor form of water. Definitely, whenever we will give heat or when we will remove heat, that can bring out some change in its state. जैसे for example is here, अगर हम पानी को फ्रीजर में रख रहे हैं, पानी से भरा हुआ कोई भी ट्रे फ्रीजर में रख रहे हैं, देन व्हाट हैपन्स, जो भी पानी के अंदर जितना भी टेम्परेचर है, हीट है, उसको रिमूव करता है रेफ्रिजरेटर. अल्टीमेटली दैट वाटर चेंज इनटू सॉलिड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ आइस. सिमिलरली व्हेन दैट आइस लेफ्ट आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर इन द ओपन रूम आल्सो, देन व्हाट हैपन, वो जो टेम्परेचर है पहले तो वो -0 डिग्री
टेम्परेचर पे रखा था रेफ्रिजरेटर के अंदर, लेकिन अब तो वो रूम टेम्परेचर पर आ गया है, देन अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, वो जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। दैट इज व्हाट सिंपली चेंज इन स्टेट, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड। समटाइम इफ वी विल गिव मोर हीट टू द लिक्विड, देन व्हाट हैपन, दैट लिक्विड में चेंज इनटू व्हाट, वेपर्स, स्टीम, वाप बन जाएगा वो। गेटिंग? नेक्स्ट इज हियर, नेक्स्ट चेंज इज हियर थर्मल एक्सपेंशन। Thermal expansion. Most of the solids, liquids and gases are known to expand on heating. Expand का मतलब होता है फैलना, बढ़ जाना। मैक्सिमम जो लिक्विड्स हैं, सॉलिड्स हैं, या हम कह सकते हैं गैसेस हैं, दे एक्सपैंड व्हेन देयर टेम्परेचर रेजेस अप, देयर टेम्परेचर रेजेस अप। दिस phenomenon is called thermal expansion. इस फेनोमिना को क्या बोला जाता है? थर्मल एक्सपेंशन। इज इट क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए हाउ यू विल डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन, सिंपली यू कैन से ऑन हीटिंग द ऑब्जेक्ट या ऑन हीटिंग द सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस may expand from its original or its initial state is known as thermal expansion. यानी कि हीटअप करने के बाद किसी सॉलिड का, किसी लिक्विड का, किसी भी गैस का फैल जाना, that is known as thermal expansion. Thermal means heat, ठीक है, हीट की वजह से। For example, the metal rim to be put on a cart wheel is designed to have a slightly smaller diameter than that of the wheel. When this rim is heated, it becomes red hot, expands and slips on the wheel easily. When it is cooled, it contracts, means सुकड़ जाना, and grips the wheel firmly. Okay. होता है ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है जब उसको हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ये जो हमारे पास रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ध्यान देना बेटा, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, इसमें जब जहां पर दो पटरियां जुड़ रही होती हैं वहां पर भी एक गैप दिया होता है। ध्यान से देखना, गैप दिया होता है, थोड़ी जगह छोड़ी होती है। व्हाई इट इज सो, ये जो गैप है ये क्यों दिया होता है? क्यों दिया होता है? इसलिए दिया होता है कि जब इसके ऊपर गर्मियों के दिनों में जब इसके ऊपर ट्रेन चलती है तो ये जो आयरन के हमारे पास पोल्स हैं ये क्या हो जाएगा, ये हीटअप हो जाएंगे। हीट करने से क्या होगा? एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। मान लो ये वाला पोर्शन भी एक्सपैंड हुआ, ये भी थोड़ा बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली ये गैप क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर पहले ही आपने इनको बिल्कुल मिलाया हुआ है और हमें पता है एक्सपेंड तो होना है गर्मी में, अगर ये एक्सपेंड होगा तो क्या होगा? एक के ऊपर दूसरा ही ऐसे चढ़ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? दे मे कॉज द एक्सीडेंट्स ऑल्सो। क्लियर? सिमिलरली आपको अगर याद हो या आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के तार होते हैं, वायर्स होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये गर्मियों में लूज हो जाते हैं और इनको वैसे भी टाइट नहीं बांधा होता है। क्यों? क्योंकि जब सर्दियां होती है तो ये क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स सिकुड़ जाना, और ये जब सिकुड़ जाएंगे तो बिल्कुल तारें सीधी हो जाएगी, मतलब थोड़ी सीधी हो जाती है। अदरवाइज अगर ये पहले ही आपने बिल्कुल ऐसे बांधी है, बिल्कुल टाइट बांधी है, तो क्या होगा? सर्दियों में ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन टेम्परेचर गिरेगा, ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन व्हाट विल हैपन?
it may break the pole or wires also. Clear? Okay, you have to revise all the discussed topic here. Now next we will make the discussion about chemical changes in next lecture. Thank you.